Hello student, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 4 from the diary of Anne Frank. Anne Frank is a famous name you must have heard, and now here is the picture of Anne Frank. Her complete name is Anneliese Marie Anne Frank. She was born on 12 June 1929 and she was a German. She was a Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अपने फैमिली से चुप के अपने 4 दोस्तों के साथ ये लिखती थी। और उस टाइम नाज़ीज़ थे, नाज़ीज़ का वर्चस्व चल रहा था। जैसे ब्रिटिशर्स का हुक्म चलता है वैसे नाज़ीज़ का हुक्म चल रहा था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाज़ीज़ गेन पावर in Germany but were trapped when the Nazis occupation extended into the Netherlands. तो ये लोग एम्स्टर्डम चले गए थे, लेकिन ये लोग फंस गए जब नाजीज़ का ऑक्यूपेशन एक्सटेंड हुआ। एज persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942. Hidden room in her family Otto Frank's office building. ये वहाँ पे छुपे रहे। After 2 years in hiding, the group was betrayed, बिछुड़ गए, and transported to the concentration camp system where Anne died. Anne डेथ हो गई थी, बहुत छोटी उम्र में ही वो उनकी डेथ हो गई ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam. यही लोग वापस आ पाए थे after the war ended, युद्ध के अंत तक, to find that her diary had been saved. ये देखने के लिए कि जो डायरी एने ने लिखी, एने फ्रैंक ने लिखी है, वो सेव्ड है कि नहीं। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of the Diary of the Young Girl. और ये एक अच्छी मतलब उस साल की बेस्ट सेलर बुक बनी और आज भी इसे एज अ नावल लोग पढ़ते हैं, बहुत लाइक करते हैं। द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, इसमें उनके जीवन की सारी कहानियाँ हैं और ये जो एक्सट्रैक्ट है उसी में से लिया गया है। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch भाषा में लिखी गई थी into many languages, बहुत सारी भाषाओं में से ट्रांसलेट किया गया, and become one of the world's most widely read book. मैंने जैसा बताया कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। There have also been several films, टेलीविज़न एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस। इनके बुक पर बहुत सारी फिल्म्स और थिएटिकल नाटकीय प्रदर्शन भी किए गए, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। ओपेरा भी ये किया गया, डायरी पे बेस्ड, डिस्क्राइब्स एज द वर्क ऑफ mature and insightful mind. The diary provides an intimate examination of daily life under Nazis occupation. किस तरीके से गुलामी की जंजीरों में रहा जाता है, कैसे उसको फेस किया जाता है, सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट victims. Okay, so this was about Anne Frank.
Now let's go through the chapter. What is the chapter about? We should know about this. Writing in a diary is really strange experience for someone like me. Anne Frank has written autobiography. Now, my dear children, I want to tell you what is the difference between autobiography and biography. Biography is written by someone else. कोई दूसरा आपके बारे में लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, और जब कोई खुद के बारे में खुद ही लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. So writing in a diary is really a strange experience for someone like me. तो एने फ्रैंक ने ये खुद ही लिखा है, तो वो खुद ही कह रही हैं कि डायरी लिखना मेरे जैसी लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल काम था. Not only because I have never written anything before, इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था, but also because it seems to me that later neither I nor anyone else will be interested in musing of a 13-year-old schoolgirl. वो कहती हैं कि इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा, इसलिए कि मुझे ये लगता था कि मैं जो डायरी लिखूंगी वो खुद मैं नहीं पढ़ूंगी तो दूसरा कोई क्या पढ़ेगा. एक 13 साल की लड़की की लिखी हुई चीज़ कोई पढ़ेगा? एक स्कूल गर्ल की लिखी हुई चीज़ कोई पढ़ेगा? Oh well, it doesn't matter. ठीक है, कोई बात नहीं. I feel like writing. और मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए. And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. और मुझे एक फीलिंग थी, एक एहसास था कि मैं अपने दिल में जितने जज्बात हैं उनको बाहर निकालूं, जितनी भी दबी हुई चीज़ें हैं उनको मैं बाहर निकालूं. कैसे निकालूं, किसके साथ निकालूं? तो डायरी वॉज द बेस्ट थिंग. तो मैंने डायरी लिखना शुरू किया. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि कागज़ में इंसान से ज़्यादा पेशेंस है, धैर्य है. बिल्कुल सही बात एने फ्रैंक ने कही है. कागज़ ऊबता नहीं है, कागज़ पे आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, काटते जाइए और मिटाते जाइए. वो कभी नहीं कहता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो. लेकिन इंसान को, आप किसी इंसान को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनों को बैठा के देखिए, वो ऊबने लगेंगे, वो उठने लगेंगे, वो कोई ना कोई बहाना करके हटने लगेंगे, तो इंसान हटता है. तो कागज़ जो है ज़्यादा धैर्यपूर्वक बैठ के इंसान को सुन सकता है. वो उस पर आप लिख सकते हैं, जितनी देर चाहें उतनी देर लिख सकते हैं, रात दिन चाहें रात दिन लिख सकते हैं. तो एने फ्रैंक की ये बात बिल्कुल सही है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माय चिन इन माय हैंड्स, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. ये मैंने तब कहा था, एने फ्रैंक कहते हैं, ये मैंने तब कहा था जब एक दिन मैं बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही थी और लिस्टलेस थी. मेरे पास लिस्टलेस का मतलब होता है विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं थी. और वॉन्डरिंग, मैं इधर उधर भटक रही थी कि मुझे घर के अंदर रहना चाहिए या घर के बाहर जाना चाहिए. घर के बाहर वैसे भी नहीं जा सकती क्योंकि वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably wouldn't make me a bit of difference. Now वो कहती हैं आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडेड. मैं जहाँ पे थी, बैठी हुई थी, वैसे ही मैं बैठी रही. और यस, जो मैंने कहा था मैं उस पर डिग रही कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता. और मैं प्लान कर रही थी, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन, मैं किसी को भी
मतलब ये स्टफ़ जो मैं डायरी लिखने वाली थी वो किसी को मैं पढ़ने देने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं तब तक इसे किसी से शेयर करने वाली नहीं थी जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड लाइफ में ना मिल जाए। तो कोई भी डिफरेंस अगर मैं लिखती हूँ तो इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा मेरी लाइफ में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने एक डायरी लिखी है। Now I am back to the point that promoted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. आइए मैं बताती हूँ कि क्यों मुझे एक डायरी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए मुझे डायरी की ज़रूरत पड़ी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक डायरी भी आपकी एक अच्छी दोस्त बन सकती है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. कोई मेरी बात का विश्वास नहीं मानेगा कि एक 13 साल की लड़की बच्ची जो है वो completely alone है इस संसार में। एंड आई एम नॉट, वो कहती हैं मैं थी भी नहीं अलोन, मैं अकेली नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 years old सिस्टर, मेरे पास बहुत प्यार करने वाले माता पिता, 16 साल की मेरी बहन थी। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे पास 30 लोग और थे जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकती थी। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरे पास पूरा परिवार था, रिश्तेदार थे, सब थे मेरे पास, आंट अंकल उनके बच्चे सब थे। नो, ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई 1-2 फ्रेंड। मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली थी, सभी लविंग थे, केयरिंग थे, बट मैं उनमें एक अच्छा फ्रेंड नहीं ढूंढ पा रही थी। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। जो मैं सोचती हूँ कि जब मैं फ्रेंड के साथ हूँ, फ्रेंड के साथ होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, उनके साथ टाइम बिताना एक बहुत ही अच्छा पल होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग। और मेरे साथ यही होता था कि मैं सारी बातें कर रही थी, लेकिन मैं वो बात नहीं कर पाती, मतलब जो मैं करना चाहती थी ऑर्डिनरी बातें ही हो पाती थी, लेकिन जो ख़ास बातें होती थी वो मैं नहीं कर पाती थी। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और हम क्लोज़ इसीलिए हो नहीं पाते थे कि मैं सारी ऑर्डिनरी बात तो कर लेती थी, लेकिन जो स्पेशल बात मेरे मन में होती थी, दबी होती थी, वो मैं कर ही नहीं पाती थी, इसलिए वो क्लोजनेस कभी भी क्रिएट नहीं हो पाई। मे बी इट्स माई फॉल्ट। एनी फ्रैंक कहती हैं ये हो सकता है मेरी गलती हो कि मेरे अंदर खुलापन नहीं था। दैट वी डोंट कन्फाइन टू ईच अदर, जैसा कि मैंने बताया, कन्फाइन टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, मतलब किसी को अपनी ख़ास बात, राज की बात बता सकें, तो वो ऐसा किसी को पाती नहीं थी कि जिससे वो खुलकर अपने दिल की बात कह सकें। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, बस यही बात थी। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लायबल टू चेंज। और मेरे पास मतलब ऐसा लाइबिलिटी भी नहीं थी कि मतलब ऐसा कोई था भी नहीं जो मैं चेंज कर सकूँ, इसको नहीं उसको चूज़ कर लूँ। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। टू enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. कहती हैं कि ये लंबे समय से मैं सोचती आ रही थी कि मैं अपनी इमेजिनेशन को वास्तविकता दूं, वास्तविक रूप दूं, एक डायरी को अपना फ्रेंड बनाऊं, लेकिन मैं औरों की तरह कैसे नहीं कि उठाई डायरी और लिखना शुरू कर दिया और हो गई डायरी, नहीं।
मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। जब मैं फ्रेंड बना रही थी तो फ्रेंड का ज़रूर कोई ना कोई नाम होना चाहिए, एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। यहाँ देखिए पर्सोनिफिकेशन है, डायरी को उन्होंने नाम दिया, पर्सोनीफाई किया है और वो अपनी डायरी को किटी नाम से बुलाती हैं। कहती हैं मेरे फ्रेंड का नाम किटी है और किटी मेरी फ्रेंड है और किटी एज अ फ्रेंड कौन है? डायरी। Since no one would understand a word of my story to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कहते हैं कोई भी समझ नहीं पाएगा अगर मैं डायरेक्ट कुछ भी लिखना शुरू कर दूं किटी के में, तो ये ऐसी बात हो जाएगी कि कहीं से भी सर पैर नहीं है और कहीं से भी शुरू हो गए। तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी, जबकि मैं दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहती थी। अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग अपने बारे में ये करते हैं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ा, थोड़ा मुझे ब्रीफ अपने बारे में बताना पड़ा। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. वो कहती हैं कि मेरे फादर जो बहुत ही एडोरेबल थे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने तब तक मेरी माँ से शादी नहीं की जब तक वो 36 इयर्स के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 इयर्स की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। वो मेरी जो सिस्टर है मार्गॉट, वो 1926 में जर्मनी में पैदा हुई। I was born on 12 June 1929 और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई हूँ। I lived in Frankfurt until I was 4 और फ्रैंकफर्ट में मैं जब तक 4 साल की नहीं हुई तब तक रही। My father immigrated to Holland in 1933 और मेरे फादर चले गए थे मदर को लेकर हॉलैंड। आपको जैसे मैंने बताया था नाजीज़ का यहाँ कहर था। माई मदर Edith Hollander Frank went with him to Holland in September और वो लोग सितंबर में मम्मी पापा दोनों ही चले गए। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। ये लोग अपनी ग्रैंड के साथ रहने के लिए एचन में भेज दिया गया था। मार्गॉट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर। मदर सितंबर में गई थी और मार्गॉट दिसंबर में गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी और उसके बाद इन्हें फरवरी में वहाँ भेजा गया। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट और इनको टेबल पे बैठा दिया गया था। प्लंक डाउन का मतलब होता है एन इनफॉर्मल वर्ड, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे। बहुत नॉर्मली इनको बैठा दिया गया था मार्गॉट को ये कह के कि ये तुम्हारा प्रेजेंट है, ये गिफ्ट है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल। मैंने पढ़ाई कहाँ से की थी? मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल से। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैं जब तक 6 साल की नहीं होगी मैं वहाँ थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वॉज मिसेस क्रोप्रेस द हेड मिस्ट्रेस। एट द end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell। कहती हैं मैं 6 साल तक उनके साथ रही और मिसेस क्रोपरस बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही प्यारी थी। और जब मुझे उनसे बिछड़ना पड़ा, मुझे जब मेरा फेयरवेल हो रहा था तो हम दोनों के आंखों में आंसू थे। वी बोथ वर इन टीयर्स और हम दोनों का दिल टूट रहा था एक दूसरे से बिछड़ने से। अच्छे स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए ब्लेसिंग्स होते हैं, बून्स होते हैं, उनसे दूर जाना टीचर्स के लिए बहुत दुख की बात होती है। वो जब वो छोड़ के जाते हैं तो टीचर्स को बहुत दुख होता है। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had
to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 में उनकी ग्रैंड मदर इल हो गई और उनको अंडर सर्जरी जाना पड़ा और इसलिए एने फ्रैंक का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हो पाया, बहुत हल्के फुल्के में सेलिब्रेट हुआ। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और ग्रैंडमा की डेथ 1942 में हो गई। 1941 में वो उनका ऑपरेशन हुआ और 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफेंट आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं समझ सकता कि मैं अपनी ग्रैंडमा को कितना मिस करती हूँ, कितना उनके बारे में सोचती हूँ, कितना मैं उन्हें प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक up for the others and grandma's candle was lit along with the rest। कहती हैं कि ये जो 1942 का मेरा बर्थडे था वो टोटली मैंने डिवोटेड किया था, टोटली इसको ये कर दिया, डिवोटेड कर दिया ग्रैंडमा को और उनके नाम का कैंडल भी जलाया। The four of us were still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। कहती हैं कि हम चारों बहुत अच्छे से रहते, चारों का मतलब एने फ्रैंक, मार्गरेट, मदर एंड फादर बहुत अच्छे से रह रहे थे और 20 जून 1942 का साल चल रहा था और मैं टोटली सोलेमनली पूरे दिल तहे दिल से डेडिकेटेड थी अपनी डायरी को। इसके बाद वो उनका एक लेटर है जिसमें वो मतलब डायरी में लिखती हैं अपने क्लास एक्सपीरियंस के बारे में। तो लेट अस मेक इट पार्ट 2 आज यहाँ तक रखते हैं, ये पार्ट 1 था। सो वी विल गो थ्रू इट टुमारो। Anne Frank, from the diary of Anne Frank part 2। okay, so keep it till here and tomorrow I will teach you this part. It is very interesting, so keep on studying and there are 2 questions, keep on solving them, go through the chapter nicely. Where you have any problem, keep on writing in the comment box, I will be there to help you out and stay safe, stay healthy. See you in the next video. Bye bye.